Good afternoon. Hello. I'm Dr. Swaleha Mujawar. I'm Assistant Professor in Department of Psychiatry. And today we are going to learn about stress management. And about stress, everybody has experienced it. Everybody knows what stress is. But we don't know how to manage or we don't know what to do about it. Hence, today's lecture. So I would like to ask, especially the PGs, let's have a discussion and a two-way lecture. So are you stressed? Yes. So I know. So yes, PGs are stressed and so are the faculty. But so are you stressed? The answer will be yes to I think anybody that we ask. But what stresses you out? So the answer to this question I think will be different for different people. So yes, apart from work, what other things are there that stresses you out? I mean, I can imagine, but I want to know from you. Okay, work में what stresses you out? Exams. हाँ. नहीं, no need to stand also, but exams, yes, and disturbed sleep, so not able to sleep because of duty, schedule and everything, yes, and हाँ हो गया बस हाँ ठीक है और हाँ अरे दिस इज अ वेरी इनफॉर्मल डिस्कशन ऐसे कोई हाँ थीसिस को लेके किसी को स्ट्रेस नहीं है अच्छी बात है तो चलो गुड टू नो दैट देर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रेस फ्री पीजीज एंड एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड फैकल्टी तो चलो अच्छी बात है एंड ठीक है जो भी आप लोगों ने स्ट्रेस बोला वो स्ट्रेस को फिर आप हैंडल कैसे करते हो ठीक है ड्यूटी का स्ट्रेस है तो हाउ डू यू हैंडल इट not thinking about it okay very good and okay expressing it out okay and मैम एज फैकल्टी आप लोग क्या करते हैं जब थीसिस का स्ट्रेस होता है इनका ठीक है मे बी मेकिंग श्योर उनके पीछे पढ़ पढ़ के थोड़ा काम करवाना सो everybody has different types of stresses basically what I want to say कि सबको अलग अलग टाइप का स्ट्रेस होता है एंड सब हैंडल भी अलग अलग वे में करते हैं सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रेस एंड हाउ टू हैंडल इट इन अ इफेक्टिव वे समटाइम्स हम नेगेटिव वे में हैंडल करते हैं और उससे और बढ़ते जाता है so सबसे important thing to remember is that stress is a normal reaction. Stress में physiological changes होते हैं, psychological changes होते हैं, but always remember it's an evolutionary mechanism. Fight or flight response होता था caveman के time पे, जिससे we were able to actually survive. तो stress is normal बोल सकते हैं एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो टूल्स होते हैं अगर हम इनको रीसेट कर सके हमारे फ्लाइट रिस्पॉन्स को हम थोड़ा कंट्रोल कर सके या अपने हिसाब से चेंज कर सके तो एक्चुअली काफी फायदा ही होता है तो what I want to say that stress is not always bad it's a response and when situations seem threatening to us our bodies react quickly uh, and how the body reacts is known as the fight or flight response तो इसमें हमने देखा है दो चीजें होती है फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सो ऑलवेज रिमेंबर दैट स्ट्रेस का जो रिस्पॉन्स है सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल पे नहीं होता है एक फिजियोलॉजिकल लेवल पे भी होता है एंड ये सबसे फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होते हैं तो डोंट ट्राई टू जस्ट इग्नोर स्ट्रेस या आप अगर स्ट्रेस में है तो ये मत सोचिए कि नहीं नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है हम इसमें करेंगे बिकॉज उसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होता है बॉडी पे so all stress
is not bad because moderate amount of stress तो चाहिए होता है for performance, for efficiency. जैसे आप लोग थीसिस का स्ट्रेस नहीं ले रहे हो तो थीसिस पे करोगे नहीं, टाइम पे होगा नहीं. So too little stress may lead to boredom. Too much stress से फिर एंजाइटी हो जाती है और फिर काम नहीं कर पाता. तो दिस इज द स्ट्रेस कर्व. बहुत कम होता है तो रिलैक्स कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है तो एंग्शियस हो रहे हैं. वी नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस जिससे हमारी एफिशिएंसी भी हाई हो बट हम बहुत ज्यादा एंग्शियस ना हो. सो ऑल stress is not bad and stress is unavoidable also. आप अगर सोचोगे कि हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं या स्ट्रेस नहीं लेंगे, ऐसा होता नहीं है. some stresses will occur regardless of your actions. So death of a patient or a family member, so this is something जो हमारे हाथ में नहीं होता है. some stresses can be prevented like time management, तो ये हम आगे देखेंगे. stresses से हमारे skills develop होते हैं and a prolonged bout of stress can affect your health and ability to cope with life. तो for example taking a test, अगर आप stress नहीं लोगे तो फिर पढ़ोगे नहीं, बट स्ट्रेस लोगे तो थोड़ा अच्छी पढ़ाई करके हो सकता है अच्छा जाए. तो जब भी आप टेस्ट देते हो, फिजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है व्हेन यू आर राइटिंग एन एग्जाम? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव रिटन एग्जाम्स, कुछ नहीं तो नीट एग्जाम दिया ही है, तो उसमें फिजिकल रिस्पॉन्स क्या था स्ट्रेस का? व्हाट डिड यू फील? या बिहेवियरल मेंटल जो भी है, व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड व्हाट डू यू फील? आप लोगों को क्या क्या दिमाग में आता है या फिजिकली क्या फील करते हैं? Excessive sweating, very good. That's a physical response. Insomnia, increased thirst, gastritis. So पेट में प्रॉब्लम्स होने लगती है, नॉट जस्ट गैस्ट्राइटिस, किसी किसी को दुखता है, पेट गड़बड़ होने लगता है, स्लीप में डिस्टर्बेंसेस होती है. इमोशनल रिस्पॉन्स क्या होता है? आई एम श्योर सबको कुछ न कुछ हुआ ही होगा कभी ना कभी. क्राइंग, शाउटिंग, गुस्सा आने लगता है तो सामने वाले पे निकाल देता है, एंग्शियस फील होने लगता है. तो वही है, देयर इज अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट वी गो थ्रू जब स्ट्रेस होता है. तो ये है सारे सिम्टम्स. सो लॉन्ग लिस्ट है. जब भी स्ट्रेस होता है तो बहुत सारे फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, कभी कभी हेडेक्स होने लगता है, पेन होने लगता है. बट आउट ऑफ दीज कुछ होते हैं जो रेड फ्लैग साइंस होते हैं. सो यू शुड नो व्हाट आर द वार्निंग साइंस और द रेड फ्लैग साइंस, ताकि हमें पता चले कि स्ट्रेस अब बहुत ज्यादा हो रहा है, अब इसको डिक्रीज करने की जरूरत है या कुछ कंट्रोल करने की जरूरत है. So we know that it's a fact of life. We may not be able to get rid of it, but we can lower it. So what are the ways that we can lower it? वही हम आज सीखेंगे. तो what can you do about stress? एक है कि find out what is the cause. Sometimes हमें cause ही नहीं पता होता है. Especially we see a lot of patients जो बोलते हैं कि लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर फिर भी स्ट्रेस्ड है. तो समटाइम्स नहीं पता होता है, बट इफ यू नो then we know some ways are there that we can learn healthy ways to relieve stress. So if you are doubtful कि मैं stressed हूँ या नहीं हूँ, तो एक scale आती है हमारी, that is the Holmes and Rahe stress scale. So if you feel you or your friends, family or your patients are stressed, so you can just apply this scale. उसमें we have to circle the number of life change units and past 1 year का हम assessment करते हैं. एंड उसमें से एक एस्टिमेट आता है दैट गिव्स अस एन आइडिया. इफ यू फील दैट स्ट्रेस है तो फिर कुछ कुछ सॉल्यूशंस होता है. तो मेन तो है, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा है तो प्लीज रेफर टू अ साइकेट्रिस्ट, बट फ्यू क्विक सॉल्यूशंस दैट यू कैन डू. सो क्विकेस्ट सॉल्यूशन होता है अपने 5 सेंसेस को यूज करना. दीज आर नोन एज ग्राउंडिंग टेक्निक्स. जैसे इलेक्ट्रिसिटी में ग्राउंडिंग टेक्निक्स होती है, उस पे से ये ग्राउंडिंग टेक्निक्स है. बेस्ट ग्राउंडिंग टेक्निक है जस्ट टू फील
the floor under your feet. अगर आप ग्रास में जा सकते हैं, लाइक अगर घर पे है या ग्रास का एक्सेस है, गार्डन का एक्सेस है, तो दैट इज देयर, बट स्टिल कारपेट हो गया या जैसे मार्बल का फ्लोरिंग है, जस्ट फीलिंग द फ्लोरिंग on your feet can actually help in grounding you. So this is the quickest and the fastest technique. What we tell our anxiety patients are, just pay attention to 5 things that you can see, 4 things that you can touch, 3 things that you can hear, 2 things that you can smell, and 1 thing that you can taste. So this is known as the 5 4 3 2 1 grounding technique. So this is very quick, very easy, and ये तो जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है. हाँ, ये नहीं वर्क करता है तो आगे है. समटाइम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक वर्क्स. So start with this. Second very quick technique is a box breathing technique. This technique is actually used by US Navy SEALs in combat. तो ये इतना इफेक्टिव है कि उसमें भी वर्क करता है, तो हमारे डे टू डे सिचुएशंस में तो डेफिनेटली वर्क करेगा. तो इसमें हम क्या बोलते हैं, एक बॉक्स इमेजिन करना है ऑन योर, मे बी ऑन योर पाम या पेपर पे. इसमें बॉक्स में होता है 4 कॉर्नर्स. फर्स्ट यू हैव टू इमेजिन ब्रीद इन, देन होल्ड, देन ब्रीद आउट एंड देन होल्ड. तो यूजुअली 4-4 सेकेंड्स के लिए हम करते हैं. अगर उससे ज्यादा भी हो सकता है तो बेटर है. So 4 seconds you're breathing in, 4 seconds you're holding, 4 seconds you're breathing out, again 4 seconds you're holding. तो ये करते जाना है 5-6 times. If you start doing, you'll start feeling your anxiety going down. तो whenever you're feeling very stressed, very anxious, 2 मिनट लगता है ये करने में. Just do box breathing technique and you'll start feeling better. Other things that you can do is write it down, because हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है और सारा कुछ जम्बल अप होता है. When you start writing it down, वो दिमाग से हट जाता है, थोड़ा स्ट्रेस भी कम हो जाता है. And not just writing out what you are stressed about, write what you are thankful for also. So पॉजिटिव चीजें लिखिए, नेगेटिव चीजें लिखिए. नेगेटिव चीजें लिखने से वो मन से निकल जाता है, एक मन हल्का हो जाता है. Positive things, if you write, it is known as gratitude journaling. So gratitude may relieve stress and anxiety by focusing on the positive, because a lot of neuroplasticity has been seen. तो जब हम पॉजिटिव चीजों पे फोकस करते हैं, हमारे ब्रेन में भी चेंजेस होने लगते हैं, एंड योर ब्रेन गेट्स रीवायर्ड to focus more on the positive things rather than the negative things. So writing it down, the positive. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू द पीजीज. तो न्यूरोप्लास्टिसिटी है ना, ब्रेन जो है वो प्लास्टिक होता है, ठीक है. प्लास्टिक आप लोगों ने देखा है, बेंड होता है, एक्सपांड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो पहले माना जाता था कि ब्रेन जो है 2 years के बाद चेंज ही नहीं होता है. बट नाउ it has been proven by multiple studies using fMRI, PET scan, कि हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है. आपके एवरीडे स्ट्रेसर्स से ब्रेन पे इफेक्ट हो रहा है, एंड आपके एवरीडे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हो गए या थेरेपी हो गए या वट एवर साइकेट्रिक मेडिकेशन समटाइम्स किसी को लगती है, बट ऑल दीज चेंजेस से ब्रेन में एक्चुअल चेंजेस होते हैं. तो योर ब्रेन इज नॉट स्टैटिक, देयर इज डायनेमिक चेंजेस हैपनिंग इन योर ब्रेन एवरी डे, एवरी सेकेंड. एंड आपके कंट्रोल में है कि आप न्यूरोप्लास्टिसिटी से आपके ब्रेन को कैसे रिवायर कर सकते हैं. दिस न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड रीवायरिंग योर ब्रेन हैज गेन्ड लाइक काफी पॉपुलैरिटी. इंस्टाग्राम वगैरह पे आप देखेंगे कि रीवायरिंग योर ब्रेन के काफी टेक्निक्स आए हैं. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इफ यू वांट टू गो एंड रीड, बट दिस इज द जिस्ट, या एक बहुत ही शॉर्ट में, this is what neuroplasticity is about. Okay, so actually writing down what you are thankful for और gratitude journaling से आपके ब्रेन में एक्चुअली चेंजेस हो रहे हैं, न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस हो रहे हैं, एंड आपका ब्रेन रीवायर हो रहा है. तो दिस इज नॉट समथिंग कि ऐसे ही बोल रहे हैं, एक्चुअल चेंजेस है, एंड एक्चुअल में काफी फायदा होता है उससे.
Another thing which comes under the purview of neuroplasticity only is changing your attitude. So this what we technically say as cognitive behavior therapy, but basically देखा जाए तो देखने का नजरिया बदलना है. जब हम एक चीज देखते हैं तो we can see it as an obstacle or we can see it as an opportunity. इससे चेंज होगा हाउ वी रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन. आप एक सिचुएशन को ऑब्स्टिकल करके देखेंगे तो बस एंग्शियस होके बैठ जाएंगे और कुछ नहीं होगा. पर वो सेम चीज जो है, ऑब्स्टिकल ही एक अपॉर्चुनिटी है. अगर बस आप उसको देखने का नजरिया चेंज कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा. सो नेवर सी थिंग्स एज एन ऑब्स्टिकल, इट इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी. कमिंग टू माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस इज अनदर थिंग जो काफी पॉपुलर हो गया है एंड काफी पॉपुलैरिटी हुआ है. तो माइंडफुलनेस एंकर्स यू टू द मोमेंट. इट हेल्प्स कॉम्बैट द एंजाइटी इंड्यूसिंग नेगेटिव इफेक्ट्स. सो अगेन माइंडफुलनेस की काफी ट्रेनिंग होती है, टेक्निक्स होती है. देर आर माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, योगा एंड मेडिटेशन भी माइंडफुलनेस के अंदर ही आता है. एंड अ recent study on mindfulness found that it may increase self-esteem, decrease anxiety, decrease depression. So again, mindfulness is also a very powerful and effective technique. जस्ट लिसनिंग टू म्यूजिक बहुत सिंपल एंड इफेक्टिव टेक्निक है. स्लो पेस्ड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लाइक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हो गया, इंडिजिनस सेल्टिक म्यूजिक. सो अ लॉट ऑफ स्टडीज हैव एक्चुअली शोन कि स्लो रिलैक्सिंग म्यूजिक के बाद लोगों का बीपी कम हुआ है, लोगों का पल्स रेट कम हुआ है. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव टेक्निक. सिंपल, पिक whatever आपको म्यूजिक जो अच्छा लगता है, which you enjoy. नेचर साउंड्स ऑल्सो, सो साउंड ऑफ बीच वेव्स या पानी गिरने का साउंड, ये सब आप गूगल करेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारे रिलैक्सिंग साउंड्स है. तो इफ यू आर फीलिंग स्ट्रेस, जस्ट वो साउंड लगा के 2 मिनट 5 मिनट बैठ जाएंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव. Then comes deep breathing. So whenever you are anxious, आपकी breathing automatically shallow हो जाती है because your sympathetic nervous system is activated, which leads you to do shallow breathing. और shallow breathing से एक तो carbon dioxide wash out भी हो जाता है, तो again आपको dizziness होता है और बाकी और symptoms बढ़ने लगते हैं. So at this time, doing deep breathing is very very important. So mental stress activates your sympathetic nervous system. Deep breathing activates your parasympathetic. तो जब आप डीप ब्रीदिंग करने लगते हैं, ऑटोमेटिकली सिंपैथेटिक ओवरड्राइव जो है वो कम हो जाती है और पैरासिम्पैथेटिक वाला आता है. एंड पैरासिम्पैथेटिक इज योर रेस्ट एंड डाइजेस्ट एंड योर रिलैक्स वाला सिस्टम. सो यू नीड टू एक्टिवेट योर पैरासिम्पैथेटिक. वो आपके कंट्रोल में है एंड आप इसे कंट्रोल कर सकते हो जस्ट डीप ब्रीदिंग करके. एंड डीप ब्रीदिंग में बहुत अलग अलग टाइप के ब्रीदिंग्स आते हैं. डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग. इसके भी यूट्यूब पे देर आर लाइक स्टेप वाइज पूरा कि आप कैसे कर सकते हैं. अगेन जो प्राणायाम टेक्निक्स होती है वो भी डीप ब्रीदिंग में आती है. सो यू कैन जस्ट लर्न एनी टाइप ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक विच यू आर comfortable with, but it will increase your parasympathetic system and make sure that your stress is less. Finding a support system is very very important. So having people जिनके साथ आप शेयर कर सकते हैं डे टू डे adverse effects, they will be part of your system, or they will be part of the machinery that will help you deal with stress. So this is important. And always be realistic. Set practical goals. Sometimes हम unrealistic goals कर लेते हैं, and then when the goals are not going as per plan या वो goal हम achieve नहीं कर पाते हैं तो then stress होता है. So always remember you have to take one step at a time. आपको पूरा jump करके नहीं ऊपर जाना है, वो करोगे तो definitely गिरोगे. So try to take one step at a time and have goals जो actually achievable हो, and expectations भी realistic रखना चाहिए. Being organized is very very important.
सो अगेन विथ पीजीज थीसिस का हो गया या बाकी सब काम हो गया, बी वेरी ऑर्गेनाइज, बी वेरी मेटिकुलस इन योर वर्क. इफ यू आर ऑर्गेनाइज तो स्ट्रेस होगा नहीं है. हैविंग अ गुड प्लान, प्लानिंग अहेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उससे स्ट्रेस कम होता है, फ्रस्ट्रेशन कम होता है. सो प्लान योर टाइम. आपको पता है कितना टाइम है, पीजी कितने टाइम का होता है, क्या क्या बुक्स पढ़ने, क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने, यू ऑल नो दिस. सो मेक अ शेड्यूल एंड ऑब्वियसली प्रायोरिटाइज. कि थोड़ा थर्ड ईयर में जाके रीडिंग थोड़ा ज्यादा होती है, फर्स्ट ईयर में कम होती है, तो प्रायोरिटाइज इट अकॉर्डिंगली. Get regular exercise also. This is also very very understated, but थोड़ा बहुत exercise आप 10 minutes भी अगर कर लो तो this will also help in relaxation. Get a hobby, क्योंकि दिन भर हम काम करते रहते हैं, दिन भर एक ही चीज करते रहते हैं, तो ब्रेन थक जाता है, परेशान हो जाता है एक ही काम करते हुए. तो वट एवर हॉबी यू लाइक पेंटिंग, साइकिलिंग और निटिंग, वट एवर जो आपको थोड़ा खुशी देता है, थोड़ा अच्छा लगता है, ब्रेक मिल जाता है काम से, वो करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. अगेन फॉर 5-10 minutes, ज्यादा नहीं. Laughter again is a very good medicine. So use humor. जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है, कुछ फनी मूवी देखिए, या ह्यूमरस, इफ यू लाइक रीडिंग बुक्स तो रीड समथिंग विच इज ह्यूमरस. बिकॉज आपके फ्री टाइम में अगर आप हॉरर मूवीज देखोगे या स्ट्रेसफुल मूवीज देखोगे तो दैट माइट एक्चुअली एड टू योर स्ट्रेस. सो ट्राई टू add laughter in your day-to-day life. And stress relief from laughter is not a joke. It has short-term benefits, it has long-term benefits. Short-term benefit ये होता है when you start laughing, it actually causes physical changes in your body. It stimulates many organs. Again आपका वो जो flight or fight response है उसको वो ये करता है. And in general tension soothe करता है. तो पुराने जमाने में आजकल भी मे बी होता है, एक लाफ्टर क्लब जैसा होता था जहाँ पे लोग एक सर्कल में खड़े होते हैं एंड दे जस्ट लाफ, और कुछ नहीं करते हैं. एंड वो कुछ कुछ लोगों का लाफ्टर ही इतना इन्फेक्शियस होता है कि उनको सुनते हुए फिर हंसी आने लगती. तो यू डोंट इवन नीड अ जोक और एनीथिंग, जस्ट एक लाइन में खड़े रहो, लाफ करो, एंड दैट एक्चुअली एक्टिवेट्स योर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एंड इट्स एक्चुअली क्वाइट हेल्पफुल. लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में देखा जाए तो क्विक पिक मी अप नहीं है. लॉन्ग टर्म में भी वी स्टार्ट यूजिंग लाफ्टर एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, ह्यूमर एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, तो हम डे टू डे सिचुएशंस को भी बहुत अच्छे से डील कर पाते हैं. इट इम्प्रूव्स योर इम्यून सिस्टम, पेन रिलीफ करता है, पर्सनल एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, मूड इज ऑलवेज better if you are using laughter as a mechanism. So कुछ टेक्निक्स है या कुछ प्रिंसिपल्स है विच यू नीड टू फॉलो. 4 A's है. अवॉइड पीपल हु बॉदर यू. आई नो हर बार पॉसिबल नहीं होता, बट ट्राई टू हैव इंटरेक्शन टू द मिनिमम. लर्न टू से नो. एंड देखिए, एक लिस्ट आप बना सकते हैं ऑफ पीपल हु आर बॉदरिंग यू एंड हाउ यू कैन एक्चुअली डिक्रीज इट. ऑल्टर, रिस्पेक्टफुली आस्क अदर्स टू चेंज देयर बिहेवियर. अगर आपको लग रहा है सामने वाले का बिहेवियर ठीक नहीं है, बी रिस्पेक्टफुल, डोंट गेट इन अ फाइट. एंड आई नो विद इन पीजीज तो काफी फाइट्स होती है, तो कम्युनिकेट योर फीलिंग्स ओपनली, बी वेरी ऑनेस्ट, मैनेज योर टाइम बेटर, सेट प्रायोरिटीज, वर्क हार्ड, अपनी तरफ से जितना ठीक रह सकते हैं रहना है, सेट लिमिट्स इन एडवांस एंड रिहर्स सक्सेस. Acceptance is also very very important. So talk with someone. सामने से कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, ट्राई टू फॉरगेट एंड फॉरगिव. प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक. सो एफर्मेशंस होती हैं डेली विच यू कैन डू, दैट ऑल्सो हेल्प्स. अडेप्ट करो डे टू डे सिचुएशन में, जो भी स्टैंडर्ड्स है, प्रॉब्लम्स आ रही है उनके साथ अडेप्ट करने की भी कोशिश करो कि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं. ठीक है. सेल्फ केयर में अवॉइड ड्रग्स एंड अल्कोहल. दिस विल डेफिनेटली
प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा ही, ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है किसी भी चीज़ के लिए। फाइंड सपोर्ट सिस्टम, कनेक्ट सोशली, टेक केयर, हैव अ हेल्दी डाइट, अच्छी स्लीप जितनी पॉसिबल है लो, एक्सरसाइज जितना कर सकते हो लो, टेक अ ब्रेक, भले आधे एक घंटे का ब्रेक है, बट इफ यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड, always better to take a very short break, maintain a routine, and again, see, blaming others always make the stress worse. So ये हमेशा याद रखो, the way you think and see the world around you affects your stress levels more than the other person. तो आपको पता है कि ये चीजों से आपको ही नुकसान होने वाला है, तो ये एक्सेप्ट कर लो. Externalizing your stress, saying कि I know it is his fault, he screwed it up, उसकी गलती थी, उसके वजह से मुझे सफर करना हो रहा है, तो ऐसे से नुकसान ही होता है. What you can do is कि इस सिचुएशन में what could I have done? बी अकाउंटेबल, इससे आपका ही पर्सनालिटी डेवलप होगा. हैविंग अ अकाउंटेबल पर्सनालिटी गोज अ लॉन्ग वे, आपको लॉन्ग टर्म में भी बहुत बेनिफिट होगा. सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर स्ट्रेस रिस्पॉन्स, एंड आपको अगर लग रहा है कि हाँ ये चीज से हो रहा है, तो अगेन सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, खुद पे ज्यादा फोकस करो rather देन अदर पीपल पे, बिकॉज दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल. लोगों को आप नहीं चेंज कर सकते हो, पर खुद को चेंज कर सकते हो. कुछ कुछ फूड्स हैं, फूड्स एंड ड्रिंक्स बेसिकली, जो आपको स्ट्रेस डील करने में थोड़ा प्रॉब्लम कर सकती है. वन इज कॉफी. आई नो ऑल ऑफ अस टेक कॉफी एवरी डे, बट कॉफी जो है एंजियोजेनिक होता है. एंजियोजेनिक है ना, एंजाइटी बढ़ाता है. तो ये स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कॉफी इज फाइन, पर आप बहुत ज्यादा कॉफी पीने लगेंगे तो अगेन द एंजाइटी लेवल्स विल कीप इंक्रीजिंग. कंट्रोल करिए. Salt again is harmful. Vending machine, that is basically processed foods जितना avoid कर सकते करना है. Fried foods avoid करना है. Alcohol तो absolutely no. And future में how can you manage stress? So create a culture that promotes stress-free management. Manage the mindset that, तो अपना mindset भी change कीजिए. Manage your stress while it is happening. Train doctors to recognize and treat stress-related illness. So that is why we are here. तो आप लोगों ने अभी पढ़ा है कि क्या क्या symptoms होते हैं, क्या क्या scales होते हैं. If anybody is feeling stressed, recognize and send them to a mental health professional. Make the message of stress management simpler. And newer brain science, newer research हो रही है आज जो हमने discuss किया. Be very proactive with dealing with your stress. Address the underlying जो भी reasons है stress के, उनको भी treat करेंगे तो better होगा. So I've told you a lot of techniques, बहुत सारी चीजें आपको सिखाई है, but अगर एक word में बोलना है तो is balance. So try to balance your stress levels, try to balance your work life. सब में एक बैलेंस आप रखेंगे तो स्ट्रेस जो है होपफुली वो भी कंट्रोल रहेगा या बैलेंस्ड रहेगा. तो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माय लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट क्वेश्चंस. किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं तो